Right. तो हम ये सोचते हैं कि होम मेकर ही बिजनेस शायद करना चाहता है, बट इट इज नॉट सो. तो वेलकम एवरीबडी, वेलकम टू द सेशन ऑन 3 steps प्लान फ्रॉम हॉबी टू business. So, Neeta, conversing with you because that's a very inspiring story. Somebody who's into Right. politics and still wants to be in the space of Yes. creating something interesting. And do you want to take it as a business? Yes, I would like to take it as a business because I keep telling ladies in my area because I majorly work for Women's Wing. So Hmm. there are a lot of ladies who are working under me and they would also like to do something from home because inflation is rising day by day Hmm. and managing home alone for the husband is becoming difficult Hmm. and the wife's support is equally important. So when I'm telling the ladies you all should do something from home, it is from me it should start. So that is what I feel. When I start doing something, the others will get inspired and they too will feel like doing something. And this creativity or whatever I'm saying, the gifting thing is something. It's a kind of therapy as well. Because a lot of women nowadays are going through mental distress and they are under stress and depression sometimes because they are highly educated and not able to do anything because they have to manage home and children as well. So if they get into something like this, if they follow their hobbies and do something creative, it's a kind of therapy as well for mind relief and it's a kind of meditation, I would say. So So, Neeta, thank you so much. Neeta, this is so very, uh, you know, um, मतलब I'm overwhelmed at your thought कि आप अपने साथ में इसलिए कर रहे हैं कि the whole society you can take over. We would like to have your yes, contact number. We would yes, like sure, to ma'am. have your. Can you put it on the chat, please? My team will take it. Sure. And I would also like to tell in Pune, I work closely with Vandana Tai Savan. She's a member of parliament. I'm not sure if you people know her, but she too works majorly for women and she has a smile store wherein they keep the products which are actually made by ladies. They can resell the products because most of the ladies they know what to do, but they don't know marketing or they don't know where to sell it. So we in Smile Store we help ladies to find a market for their products. So that is also one of the thing why I would like to learn this, and we can take it ahead for most of the ladies. And this is so inspiring, and we would like lot of people to know about it, right? Yeah, We sure, would sure. like lot of people to know about it. This is absolutely wonderful. It is Are absolutely. you also from Pune, ma'am? No, no, we are based in Delhi, but I'm a Okay, national initiative head for weddings, and okay. we work for a lot of. I do a lot of. I work for a lot of NGOs and everybody. Mm-hmm. हाँ Right. हाँ जी तो I it seems that I'm having. Okay, so thank you so much for being with me here. Let Sure. me have Thank you. the view. Can everybody see me? Yes, ma'am. But Yeah, we can. you can see us, Yes, we right? can. Yeah. हाँ, तो मैं इसको गैलरी व्यू पे डालती हूँ ताकि बाकी भी सब आ सके. Now, looking at such an inspiring antidote, I would like others also to tell me कि what they do, how are they looking at this webinar. आप यहाँ पे आज क्यों आए हो? This is what I want to know. क्यों? कौन बताएगा? माधुरी. And let's be Nisha. You want to say something? Yes, Nisha. Yeah, ma'am. Hi, good morning. I am Nisha Harjai. I'm from Mumbai. हाँ जी. So, मुझे बहुत टाइम से गिफ्ट पैकिंग एंड ट्रूजो पैकिंग का बिजनेस चालू करना है. आई नो मेनी थिंग्स एंड आई हैव टू लर्न लॉट मैनी. ओके, सो ओनली द प्रॉब्लम इज आई डोंट नो हाउ टू मार्केट देम. At हम्म. what price point should I sell them हम्म. and all those things. Like, I am a graduate from Mumbai, only from Mumbai University. So हम्म. looking forward, I've been married since 30 years. My daughter also got married. So हम्म. now I have enough and ample time to give to my passion. So Wonderful, the, wonderful, so I, wonderful. I want to put up exhibitions, but I don't know how to buy stalls. What is a niche? Like, how can I turn them into profits? So I get it. I get it yeah. totally and fully your concern and what you want Okay. to say Okay, ma'am. about, and this is absolutely beautiful. Yeah, Now, thank you, ma'am. मेरे को थोड़ा सा I'm facing a little problem with Yeah. my
स्पॉटलाइटिंग प्रोसेस, तो हम इसको ऐसा करते हैं. ओके, it seems that some, okay, can Mansi is there? Is Mansi there? No. Okay, so let's start with the webinar. And anybody who wants to ask anything or say anything, they will be noting down their question answers and ask me, or they can put it on the chat. Chat is on. And okay, why this webinar is here? Why am I doing it? All the women who wants to do something from home, are you here wanting to do something? लेकिन without, if I can't see you, आप एक समझिए कि अगर मैं आपको देख नहीं सकती हूँ तो दोस्ती तो नहीं आपसे कर सकती, ये बात तो पक्की है. ठीक है ना? तो हाँ, दोस्ती तो नहीं आपसे हो सकती है, इसलिए क्योंकि मुझे पता ही नहीं लगेगा कि कौन कौन है. तो ये जो आज हम वेबिनार कर रहे हैं, ये हम वेबिनार कर रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम विदाउट uprooting yourself. You are mother, you are sister, you have home obligations, you are a daughter-in-law, you are a daughter, और many times हम कुछ ऐसा काम भी अपनी जिंदगी में कर रहे होते हैं जो हमें कम पसंद होता है और हम चेंज करना चाह रहे होते हैं, पर उससे एक सेट इनकम आ रही होती है, उसको भी हम चेंज नहीं कर पाते हैं. ऐसा है कि नहीं है? मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. यूज चैट, यूज चैट. आप किस कैटेगरी में हो? यू वांट टू वर्क फ्रॉम होम? प्लीज यूज चैट. और मेरी प्रोफेशनल बनने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने आप को फेस कर सकें, अपने आप को देख सकें. जो लोग अपनी शक्ल को कंप्यूटर की स्क्रीन पे नहीं देख सकते या फोन पे नहीं देख सकते और उससे अनकंफर्टेबल हो रहे होते हैं, वो कभी भी अच्छे प्रोफेशनल नहीं बन सकते. दिस इज फॉर श्योर. जो टू टाइमिंग कर रहे होते हैं कि मैं कुछ कर भी रही हूँ और मैं साथ में इस वेबिनार में हूँ, वो भी कभी अच्छे प्रोफेशनल नहीं बन सकते हैं. 1 घंटा लूंगी, एग्जैक्टली 60 मिनट्स के अंदर आई विल क्लोज दिस वेबिनार. तो अगर आपको पूरा इसको समझना है तो मेरे साथ आओ, अपनी लाइफ पे मेरे साथ काम करो. जहां पे मैं जो बोल रही हूँ, जो क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, उसको दूर करो, ताकि जब आप 1 घंटे बाद यहाँ से जाएं तो आप अपने लिए कुछ सॉलिड लेके जाएं, विच यू कैन यूज इन योर लाइफ. हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू दैट कि मैं 1 घंटे में क्लैरिटी लेके जाऊं? सो ये सेज आई वांट टू बिकम प्रोफेशनल, ग्लोबली इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल पैकर. ये मेरी जरूर संतोष है. हाँ, एंड शी इज द वन हु मस्ट बी राइटिंग दिस. पक्का से बात है, बिकॉज उसकी ये, हाँ है ना, हाँ मुझे लग गया पता. शी वांट्स टू डू दैट. एंड नीता जी, वी वुड लाइक टू डेफिनेटली वर्क विद योर गर्ल्स at all level, grassroots, urban, any level. ठीक है? And of course आपके साथ में. तो this webinar is for those women जिन्हें जॉब नहीं करनी है, जो रीलोकेट नहीं करना चाहते हैं, वो जहां रहते हैं वहां से पैसे कमाना चाह रहे हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट चाह रहे हैं, जिनको अपनी आइडेंटिटी चाहिए, जो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, और जिन्हें फ्लेक्सिबल अर्निंग चाहिए. मींस अगर मैं 2 दिन काम नहीं करूं तो कोई बात नहीं है, राइट? और अगर मैं ज्यादा कमाना चाहूं तो मैं शॉप खोल सकूं, आगे जा सकूं. अगर मैं पॉकेट मनी अर्न कर सकूं तो उस लेवल पे कर सकूं. मेरी अगर हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है तो भी मैं काम कर सकूं. सो दैट वे, हाउ मेनी ऑफ यू आर यू ऑल इनटू दैट स्पेस? अगर आप इस स्पेस में नहीं है तो आप एग्जिट कर सकते हो. 1 घंटा भी लाइफ का वेस्ट क्यों करना है यार? लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम ऑफ आवर लाइफ, राइट? आर यू देयर? नोटबुक और पेन है आप सबके पास में? ऑल ऑफ यू हैव नोटबुक एंड अ पेन? जो हम आज बोलने जा रहे हैं वो बदलेगा नहीं, वो ऐसा ही रहेगा जीवन के अंदर, सबके जीवन के अंदर. थैंक यू शिवानी फॉर कमिंग ऑन द वीडियो. निशा, थैंक यू. आईफोन, आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम. शांति, नेहा, आई रिक्वेस्ट ऑल मैप स्टूडेंट्स to be on the videos. Thank you Neeti for coming in. It shows that you want to, if you want to become famous, तो सबसे पहले आदत डालनी है आपको अपने आप को स्टेज पे देखने की, और अपनी वीडियोस बनते हुए देखने की, और अपनी वीडियोस को सोशल मीडिया पे और बड़े बड़े होर्डिंग्स में देखने की, है ना? कितने जने ये करना चाह रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू दैट? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू दैट? है ना? तो उसके लिए जरूरी है कि पहले अपने आप को कंप्यूटर पे तो देखें,
इस लैपटॉप पे या टेलीफोन पे तो देखें। थैंक यू राहिनी फॉर बाइंग देयर। तो स्टेप 1 आज हम क्विकली चलेंगे। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? मैं अभिलाषा। तो अभिलाषा। I'll have to find you. Okay. So let's start. Let's not I'm here. disturb the flow. अगर आप विंडो में होंगे तो मैं डेफिनेटली आपको देख पा रही हूँ. Okay. You are on the window. I'm definitely. So let's not cut off the flow because सबका टाइम बहुत प्रेशियस है और मैं ये चाह रही हूँ कि आप यहाँ से आज एक सॉलिड सोच, सॉलिड थॉट, सॉलिड रास्ता, सिर्फ ज्ञान नहीं, गूगल कट पेस्ट ज्ञान नहीं, रियल में, और आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगी, सारे कंफ्यूजन्स को सॉर्ट करूंगी ताकि आप अपनी लाइफ में अगला कदम प्रोडक्टिवली ले सकें. आर यू इन दैट स्पेस? All the MAP students who are here, I can see many of you. Alumni is present. I'm happy to see you here. Thank you. आप लोग जब यहाँ आते हैं तो मुझे मालूम पड़ता है कि अंदर एक फायर है टू नो मोर. Wonderful. Thank you, Pradanya, for being here. Thank you. Thank you so much. Step 1. अपने आप को 3 प्रश्न पूछने हैं. आपने अपने आप को 3 प्रश्न पूछने हैं. जो मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, तो हर इंडिया में लड़की खाना बहुत अच्छा बनाती है, कुछ ना कुछ लड्डू, बर्फी, मट्ठी, नमकीन, कुछ ना कुछ आता है. सो एक थॉट आती है, कैन आई बिकम अ गुरमे बिजनेस ओनर? एम आई राइट और रॉन्ग? पुट इट ऑन द चैट इफ आई एम राइट और रॉन्ग, कि मुझे कुछ कुछ तो बनाना आता ही है. ओ, वी हैव पीपल फ्रॉम गोवा आल्सो, वेलकम, राइट? कि कुछ ना कुछ, एंड यू फील लाइक अच्छा क्या मैं इसको बना के बिजनेस कर लूं? फिर आपको लगता है जी मैं तो क्रिएटिव बहुत हूँ, मैं तो चीजें सजाती बहुत अच्छी हूँ, रंगोली बड़ी अच्छी बना देती हूँ, टेबल बड़ी अच्छी सजा देती हूँ, फूल पत्ती बड़ी अच्छी बना लेती हूँ, राइट? तो मेरे को ध्यान में आता है कि कैन आई डू इवेंट, कैन आई डू गिफ्ट पैकेजिंग, कैन आई डू मे बी यू नो सम तोरण, डोर हैंगिंग्स, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट. किस किस के मन में इतनी बातें आ रही हैं? फिर आपको लगता है मैं तो कपड़े बड़े अच्छे चूज करती हूँ, मेरे को तो बड़ा आइडिया, टेलर को बड़े अच्छे से बताती हूँ नेक कैसा बनाना, बाजू ऐसी बनाना, ये ऐसी बनाना, और बड़ा अच्छा बनता है. मैं फैशन इंडस्ट्री में चली जाऊं. हाउ मेनी ऑफ यू आर इन दैट स्पेस? हाँ जी, हाउ मेनी ऑफ यू आर इन दैट स्पेस कि मैं ये करें, राइट? नाउ द क्वेश्चन कम्स कि मैं क्या करूं. आज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो बिजनेस चूज करूं घर से वो मेरे अप्रोप्रिएट हो. मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं गिफ्ट पैकेजिंग का बिजनेस घर से करती हूँ, और जितनी बाकी चीजें हैं ना, खाना बनाने वालों से भी पैसे कमाती हूँ, खाना नहीं बनाती. कपड़े बनाने वालों से भी पैसे कमा लेती हूँ, कपड़े नहीं बनाती, राइट? तोरण और डोर हैंगिंग वालों से भी पैसे कमा लेती हूँ, वो भी बनाती नहीं हूँ. किस किस को जानना है कैसे होता है ये? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो कि बिजनेस आप एक कर रही है, पैसे आप 4 जगह से कमा रही हैं? कौन कौन जानना चाहता है, राइट? है ना? इसकी बात हम करेंगे बाद में कि मैं ये कैसे करती हूँ. आई विल टीच ऑल ऑफ यू एट द एंड ऑफ द वेबिनार दैट हाउ डू आई डू दिस. बट फर्स्ट हम ये देखेंगे जिस चीज के लिए आप यहाँ पर आए हो कि हाउ डू आई नो व्हाट इज बेस्ट फॉर मी. तो अब आपने ये देखना है. अब कुछ चीजें हम करते हैं, हमारे रिलेटिव हमसे बड़े हैप्पी हैं, भाभी कह रही है जी आप तो बड़े प्रिटी लग रहे हो, आप कपड़े बड़े अच्छे बना रहे हो, कोई कह रहा है तू तो खाना बहुत अच्छा बना रहा है, केटरिंग का बिजनेस कर ले. अपना बच्चा तो जी सबको अच्छा लगता है. हाउ मेनी ऑफ यू विल अग्री टू दिस कि अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है? तो अपना बनाया हुआ सबको अच्छा लगता है. बट नाउ यू हैव टू आस्क नेचुरली मैं किस चीज में अच्छी हूँ, जिसको करने में मुझे मजा आ रहा है, जिस करने में मैं, अगर उसको सीखने की भी बड़ी दिल में इच्छा रहती है, उसको ग्रो करने की भी अच्छी रहती है. सो इफ आई एम गुड इन फूड, इफ आई एम गुड इन क्रिएटिविटी, इफ आई एम गुड इन फैशन, इनमें से कौन सी चीजें? डिजिटल स्पेस कि मैं एआई बहुत अच्छा सीख पा रही हूँ जिसमें मैं अच्छी लिखते चले जाओ साथ में. किसी को अगर दो दो चीजें, अब शिवानी कह रही है आर्ट एंड क्राफ्ट, तो अगर शिवानी आर्ट एंड क्राफ्ट कह रही है, हाउ मेनी ऑफ यू फील आर्ट एंड क्राफ्ट कि मुझे क्राफ्टिंग अच्छी लगती है? हाउ मेनी ऑफ यू फील आर्ट एंड क्राफ्ट? सो आर्ट एंड क्राफ्ट के भी कई सारे रूप हैं. आर्ट एंड क्राफ्ट के भी, मेरे लिए नुकसान का कॉन्वर्जेशन है पर कर देती हूँ आपके फायदे के लिए. जिन्हें आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छा लगता है वो पैकर बन सकते हैं, गिफ्ट पैकर्स, लेकिन वो साथ में लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बना के, तोरण वोरण बना के, टेबल सेंटर पीसेस बना के वो भी कर सकते हैं, उससे भी पैसे कमा सकते हैं.
और अगर स्मार्ट वुमन है तो वो दोनों चीजें कर सकती, क्योंकि ये दोनों हैंड्स इन हैंड्स हैं। जो आपसे दिवाली की पैकिंग कराने के लिए आएगा वो आपसे घर सजाने की चीजें भी ले लेगा और गिफ्टिंग भी ले लेगा। ठीक है, इस तरह से आप सबसे पहले ये लिख लीजिए कि मैं कौन हूं, मुझे क्या अच्छा लगता है। गिफ्ट पैकेजिंग मेरी हॉबी थी, मेरी खुद की मैं बात कर रही हूँ, है ना। अभी नीतू ने लिखा है कि कुकिंग, केक्स एंड पैकिंग। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो बेकर हैं और साथ में पैकिंग कर रहे हैं। अब नीतू को ये देखना है कि मेरा पैकिंग फर्स्ट प्रोडक्ट होगा कि मेरी कुकिंग फर्स्ट प्रोडक्ट होगी। मैं ये बता दूं, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर स्कोप ऑफ एरर होता है। मींस मैंने कुछ बनाया, अच्छा नहीं बन रहा पैकिंग में, मैं उसको दोबारा कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने 1 बजे केक बना के देना और 11 बजे वो ठीक नहीं बना, तो आई एम इन अ प्रॉब्लम। मुझे शादी में, पार्टी में जाना और मेरी केटरिंग का बिजनेस है और मेरे पास शाम को केटरिंग की ऑर्डर है, तो आई एम इन अ प्रॉब्लम। तो मेरी लाइफ कैसी है उस पे भी ये डिपेंड करता है कि मैं कौन सा बिजनेस चूज करूंगी। और जो लोग ऑलरेडी एक बिजनेस कर रहे हैं और वो उसमें सप्लीमेंट बिजनेस ऐड करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी पैकिंग कर रहे हैं, you want to add another business, कैंडल बना रहे हैं, you want to add another business, soaps बना रहे हैं, you want to add another business, that is also we need to see कि मैं सीख के करूंगी कि मैं कोलैबोरेट करके करूंगी। डन है, पहला क्वेश्चन लिख लिया आपने, आंसर लिख लिया, पुट इट हियर। कोई बात नहीं, काम नहीं किया रियल में तो कोई नहीं, लिखो यहाँ पे कि मैंने मेरा फर्स्ट लव किया और मैंने क्या करना है, राइट डाउन हियर। उसके बाद में आता है कि मैं, अभी तो अब उन लोगों को ही जानते हैं जो आसपास हैं, अभी रिसर्च नहीं किया आपने। कस्टमर को क्या चाहिए, मेरे आसपास के लोगों को मैं जब सुन रही हूँ, मैं जिस सोसाइटी में रह रही हूँ, जिन लोगों के बीच में रह रही हूँ, उनको क्या चाहिए। इवन जो प्रोफेशनल्स हैं और ग्रो नहीं कर पा रहे, उनकी ये चीज वीक है, वो इसमें मजबूत नहीं है कि वो क्लाइंट की नीड को एक्सेस कर सके, जान सके। वो कहते हैं मेरे आसपास के लोग तो कुछ खरीदना ही नहीं चाहते, अरे भैया उनके घर चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर वो नहीं भी आपसे बाइंग करेंगे तो भी वो कोई ना कोई रूप से आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और बाय एनी मीन्स, मैं कोई सी सिटी में रहती हूँ या मैं बाय चांस की बात है कोई ऐसा काम करती हूँ जिसमें मैं बहुत स्किल्ड हूँ, मेरी शादी एक ऐसे शहर में होगी जहाँ पे वो बिजनेस का स्कोप नहीं है, देन हाउ विल आई डू इट फ्रॉम रिमोट। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो रिमोटली काम करते हैं, मैं खुद पूरी दुनिया में काम कर रही हूँ, राइट। सो आपने ये लिखना है कि मुझे क्या पता लगता है। जैसे अगर हम अपना कंपटीशन देखेंगे, अगर मैं अपने को ध्यान से सुनो, अगर मैं केक और बेकिंग का काम कर रही हूँ तो मेरा कॉम्पिटिटर होम बेकर भी हैं और मेरा कॉम्पिटिटर बेकरीज भी हैं, राइट, मिठाई शॉप्स भी हैं। हाउ विल आई रन माई बिजनेस एज अ यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। ये आपको बिजनेस शुरू करने से पहले पूछना है। और अगर बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है तो ये पूछना है कि मैं किस तरह से अपने आप को यूनिक करूं। कई बार सच्ची बात बताऊं, किसी को बताओगे नहीं, प्राइवेट वाली बताऊं, किसी को बताना नहीं। प्रोडक्ट बहुत यूनिक नहीं होता है, हमारी भाषा यूनिक होती है, वहां से भी सामान बिकता है। You speak the language of people, you speak the language of client, वहां से भी सामान बिकता है। तो अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आप ये देखना है कि मेरे क्लाइंट की नीड को मैं पूरी कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, या वो बना रही हूँ जो मेरा दिल कर रहा है। अगर आप वो बना रही हैं जो आपका दिल कर रहा है और आपको क्लाइंट की ना भाषा पता है ना जरूरत पता है, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो वो नहीं बिकेगा। और अगर आप काम शुरू करने की सोच रही हैं तो ध्यान से सुनिए, कहाँ पे जरूरत है, कहाँ पे नीश है, किस चीज की जरूरत है, कैसे हम आगे चलें। और हर बिजनेस जो ग्रो कर रहा है, अगर कोई मुझे ये बोलता है शालिनी मैम इतने सारे पैकर्स हो गए हैं, विल आई बी एबल टू डू द बिजनेस और नॉट, तो मैं आपसे एक बात पूछूं मैडम, अगर किसी बिजनेस में प्रोग्रेस ही नहीं है उसमें कोई जाएगा? जाएगा उसमें कोई नहीं जाएगा। एम आई राइट? तो जो बिजनेस में लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज द बिजनेस विच इज गेटिंग यू मनी, which is getting you money. So then you at the right. The only thing is you need to plan your business well, चाहे वो कोई भी हो।
इतना क्लियर है बिल्कुल? कोई क्वेश्चन यहां तक? कोई क्वेश्चन यहां तक आपका हो? एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? नो मैम। दिस इज क्लियर। चलिए अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर। फिर हमने जो भी आपने अपना दायरा चुना, जैसे अगर मैं गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री की बात करूं तो मैं उसको करूंगी कि मैं इंडिया का जो ग्रोइंग गिफ्टिंग कल्चर है, अगर आप गूगल पे जाके ये टाइप करें कि गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री इन इंडिया एंड इट्स फ्यूचर, तो आप ये देखोगे ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इतनी तेजी से कि आपको मैं बता नहीं सकती। एक और फर्क है, पहले जब मिस्टर इंस्टाग्राम नहीं थे ना, तो आपको ये भी नहीं पता था कि मेरी बिल्डिंग या मेरे मोहल्ले में कौन पैकर है। एम आई राइट? कोई बताता था, अरे तेरे को पता है वो जो दूसरी गली है, तीसरी गली है, उसके अंदर भी कोई पैकिंग कर रहा है। अब आपको ये भी पता है कि कैलिफोर्निया में, न्यू जर्सी में, अमेरिका में, खुद हम बैठे हैं पुणे में नीता जी की तरह, और हमें दिल्ली के पैकर का पता है। आ गई है ना वो वर्कशॉप में यहाँ पे, है ना? हमें, और हमें वो कंपटीशन लग रहा है, मतलब दिल्ली का पैकर भी हमें कंपटीशन लग रहा है, बॉम्बे का पैकर भी हमें कंपटीशन लग रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कि ना वो तुम्हारे बगल में है, ना वो तुम्हारे शहर में है, ना वो कहीं पर है, लेकिन वो तुम्हें कॉम्पिटिटर लग रहा है क्योंकि वो तुम्हारे टेलीफोन के अंदर क्लिक्स के ऊपर है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद मी ऑन दिस? हाउ मेनी ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री that this is what the truth is? They are not your competition till you are doing online selling and they are doing online selling, राइट? तो अगर हमने अब एक दायरा चुन लिया, जैसे मैं गिफ्ट पैकेजिंग का एग्जांपल ले रही हूँ, आप अपना एग्जांपल लो कि मैं रिटर्न फेवर करना चाह रही हूँ, मैं फेस्टिवल गिफ्टिंग करना चाह रही हूँ, मैं होम डेकोर करना चाह रही हूँ। साक्षी, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? साक्षी, आपका हैंड रेज है। ओके, तो कि मैं क्या करना चाह रही हूँ, तो मैं बेबी, तो इसको हम कहते हैं नीश, राइट? हाँ, सो नीता, वंडरफुल। सो इसको हम कहते हैं नीश प्लानिंग, और ये डिपेंड करती है आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर, आपके घर के एटमॉस्फेयर के ऊपर, कि अगर मेरे पास में ज्यादा पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो मैं एक बड़ा सारा बिजनेस इकट्ठे शुरू कर सकती हूँ विद टीम एंड ऑल। मेरे पास है पर मैं थोड़ा ही इन्वेस्ट करके ही करना चाह रही हूँ, देन द प्लान विल बी डिफरेंट। मैं फोकस होके सिर्फ पॉकेट मनी की तरह करना चाह रही हूँ, देन द प्लान इज डिफरेंट। तो ये सारी चीजें आपको पहले अपने बारे में लिखनी है, खुद के बारे में। सबसे पहले हम अपने आप को जान रहे हैं, राइट? डन। मैं कैपेसिटी बिल्डिंग और कैपेबिलिटीज बिल्डिंग में आज नहीं जा रही हूं, आज हमारा वो कॉन्वर्जेशन नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ये होता है, कैपेबिलिटीज हुई आपकी जहां पे मेरे को क्या क्या आता है, मेरी नॉलेज कैसी है, मेरा स्किल कैसा है, और मेरा मैं एक्सपर्ट कितनी है। तो मुझे गिफ्ट पैकेजिंग का बिजनेस करना है, मुझे नॉलेज है कि ये बिजनेस अच्छा काम कर सकता है, मुझे नॉलेज है कि वो ये है वो है फलाना है, ठीक है। क्या मुझे उसका स्किल है? मैं 4 चीजें पिंटरेस्ट से देख के बना रही हूँ या यूट्यूब पे रेसिपी देख के कुछ बना रही हूँ, क्या मुझे उसकी नॉलेज है पूरी? क्या मैं उसमें एक्सपर्ट हूं? अपना टिक करो, 1 to 10 पे अपने आप को लेबल करो कि मुझे एक कस्टमर ने आके बोला मुझे अभी केक बना के दे दो, मुझे ये चाहिए, कैन आई डू दैट? किसी कस्टमर ने आके बोला कि मुझे अभी ये पैकिंग बना के दो, मुझे ये थीम चाहिए पिंक। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे, शांति इज शी इज अ डायमंड प्रोग्राम की ये स्टूडेंट है, और हमने ने स्टोरी लाइन दी बनाने के लिए होली पे, एंड शी चोज पिंक थीम, शांति। एंड देन शांति, will you share your experience that you tried to make and how the confusion was there and how you were trying to, can, will you like to share something? Yes, ma'am. Yeah, please. Yeah, it was a rose theme. सबसे पहले शांति आप अपने बारे में बताएंगे, यू आर इन हाँ. हैदराबाद। हाँ, Hello, I'm Shanti. I'm from Hyderabad. I'm into gift packaging from last 4 years, but I couldn't find any sales, so I joined as a student in MAP.
And I have got so much enlightenment about that. Now when she has given me an assignment to do a Holi based on हिंदी इंग्लिश मिक्स करें थोड़ा सा, तब सब समझेंगे. हाँ जी हाँ, मैम, हाँ जी. ओके. हाँ, हाँ, तो मैंने गुलाल की थीम बनानी है, गुलाब की गुलाल करके थीम बनाना है. तो उसके लिए मैंने खाली रोजेस के साथ किया था, पर होली नहीं लग रहा था. तो उसके पास कलर्स ऐड करूँ तो बहुत मेसी लग रहा था. इट्स नॉट लुकिंग लाइक होली नॉर वेरी क्लासी. So to make it like that, so ma'am has given us assignments again to redo it. So we are working on that. wonderful. So thank you. तो what's your experience, Shanti, when you are doing these 4 years से आप already काम कर रहे हो इसके ऊपर. हाँ मैम. अब तुम जब ऐसे काम कर रहे हो तो what is your experience of it? Yeah. पहले हम जो देखते थे वही बनाना सीखते थे. I mean बनाना करते बनने के लिए करते थे. Okay, speak in but English. Okay, yeah, speak in English. Okay, हाँ, all right. हाँ, yeah, speak in English. Yeah. yeah. I was trying to do as it is what has given, or try to implement what's in my mind. But अभी जो क्लास के बाद मुझे लग रहा है कि दिमाग तो लगाना है, पर कस्टमर जिनको अच्छा लगता है तो उनको टोन ऑन टोन ऐसे कलर्स अच्छे लगते हैं. तो बहुत सारे कलर्स नहीं जाता है. तो दैट एक्सपीरियंस आई एम अनलर्निंग व्हाट आई हैव लर्नड ऑल दीज इयर्स. सो इट्स वेरी गुड एनलाइटनमेंट फॉर मी टू डू. So thank you Shanti, thank you so much. Can we all applause for Shanti? बहुत आसान नहीं है इतने लोगों के अंदर शेयर करना. It is not easy. What she's trying to say is 4 साल से वो काम कर रही हैं, वो बना रही हैं जो अच्छा है, देख रही है, एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, वेल बिलोंग्ड है, वेल सोसाइटी प्लेस्ड है, और वो ग्रो नहीं कर पा रही है. तो जब हम बात करते हैं हमारी कैपेबिलिटीज की, तो दैट मीन्स आपकी नॉलेज बिजनेस के, उस बिजनेस के बारे में क्या है, आपके पास कितना स्किल है, और फिर कितनी एक्सपर्टीज. एक्सपर्टीज का मतलब नोइंग योर क्लाइंट, पुटिंग द प्रोडक्ट एंड क्लाइंट मिक्स लाइक दिस. व्हेन वी टॉक अबाउट कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब है मैं कितना पैसा लगा सकती हूँ, कितनी एनर्जी लगा सकती हूँ, कितना टाइम डिवोट कर सकती हूँ उसके अंदर, मेरी लाइफ के अंदर, विदाउट बीइंग अपरूटेड, एंड देन रन अ बिजनेस. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? दो चीजें अलग हैं. एक के अंदर हम बात कर रहे हैं टेक्निकलिटीज की. आप अपने आप को रेट करें अभी कि अगर आप गिफ्ट पैकेजिंग का बिजनेस शुरू करना चाहती हैं तो आप नॉलेज, स्किल एंड एक्सपर्टीज में 1 to 10 पे कहाँ हो. ये आपके लिए डॉक्यूमेंट है, कोई आपको इसमें जज नहीं कर रहा, आप अपने लिए कर रहे हो इसको, राइट? वैशाली, आरती, आई कांट सी यू पीपल, बट आई होप यू आर वर्किंग, राइट? And then the other we are doing also, right? How much money can I invest? How much time can I give? How much energy can I put? And am I ready to build up my capacity? Am I ready to build up my capabilities? Capabilities build up होती है तो capacity अपने आप build up होती है. हाँ जी, done है? Now, are we ready to move to the step 2? Put it on the chat, because Shivani, Neeta, Divya, Rahini, are we ready to go to the step 2? Okay, now step 2 is, question ये है कि most of the women काम शुरू करने के बाद में सक्सेस नहीं होती हैं या छोड़ देती हैं, बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाया, दे लूज इंटरेस्ट. नंबर 3, काम इस ढंग से किया कि फैमिली अपसेट होने लग गई, बिकॉज एक पहले उनका एक लाइफस्टाइल था, अब वो चेंज हो रहा है, वो बिजी हो रही हैं या बहुत ज्यादा उसमें काम कर रही हैं, एंड देन पीपल आर अपसेट. हाउ मेनी ऑफ यू आर इन द स्पेस that you have started the business or you have just started? So Neha says me, I'm the one, and no to देखो प्रीति. तो जब हम एक मन से बिजनेस शुरू करते हैं, मन, हमने कोई प्लानिंग नहीं करी, हमने अपनी कोई कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करी, हमने कोई कैपेबिलिटी बिल्डिंग नहीं की, तो पता प्रोसेस क्या है? इंस्पायर हो गए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, यू आर वेरी गुड एट इट, लेट्स स्टार्ट दिस बिजनेस. आपने कुछ पैसे अपने पर्स में डाले, यूट्यूब देखा, पिंटरेस्ट देखा, बड़ी सारी फोटोज अपलोड करी, डाउनलोड करी, राइट?
है ना? Yes, yes, Yogita, you are very right. It demotivates when it doesn't scale up. Look at the chat, what Yogita is saying. It demotivates. Why does it does not scale? The question is, ये scale क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने पहले तो अपने आप को ही नहीं जाना कि हम करें कैसे. दूसरा, ना कैपेसिटी के लिए जाना, ना कैपेबिलिटी के लिए जाना, लैक ऑफ नॉलेज नहीं है, हमें पता नहीं है कि इसको कैसे करें. और इतने सालों से हम एक सर्टेन टाइप की लाइफ को जी रहे हैं, उसका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जिसको हम ये बदलाव कहते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस, हम इसको कैसे लाएं. जब हम ये नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करते हैं? यू गो टू द मार्केट, यू बाय 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 थिंग्स. खूबसूरत और चीजें हम ज्यादा खरीदते हैं, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमें लगता है, निशा कह रही है हाँ, मैं आई कैन से निशा, चीजें क्योंकि हमें लगता है 100 की खरीदी 200 में बेच देंगे तो प्रॉफिट आ गया, 150 में खरीदी 300 में बेच देंगे. लेकिन हम अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर काम नहीं करते, सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखते हैं और पिंटरेस्ट देखते हैं और इंस्टाग्राम पे डिजाइन देखते हैं और ये सोचते हैं कि हम तो जी चलो जी रेडी हो गए बिजनेस के लिए. हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस और वर प्लानिंग टू डू लाइक दिस? Tell me, how many? To use the chat, how many are? You can raise your hand, but I can't see everybody there when you are raising your hand. How many of you are in that space कि यार, और फिर क्या है? खुद ही बना रहे हो, खुद ही पैक कर रहे हो, खुद ही बेच रहे हो, खुद ही कर रहे हो. अगर मन उदास है तो खुद ही रोना गाना कर रहे हो, कोई है नहीं बात करने के लिए, कोई डिस्कस करने के लिए, कुछ नहीं पता, और एक गाना गा रहे हो. वो पुराने जमाने में गाना होता था, बड़ा क्लासिकल गाना है, যদি তোরে ডাক শুনে कोई ना আসে তবে একলা চলো রে. That time is gone, dear. How many of you know that the collaboration is the way to do the business? And you can do only collaboration when you know your own strength, your own weakness, and have a people. तो second जो हमारा step है, वो हमने ये देखना है, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्होंने ये देखना है, क्या मैंने रैंडम शुरू किया है, किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं किया, कोई बिजनेस नहीं बनाया, प्लान नहीं करा, और अगर सलाह मशवरा किया तो कोई रिश्तेदार और सहेली से किया जिसको पहले खुद ही नहीं पता. इंस्पायर हो गए, तीसरी गली के अंदर एक लड़की पैकिंग का बिजनेस कर रही, मैं भी कर लूं. ओ यार, उसने तो इतने सारे केक बना के इतने पैसे कमा लिए, चलो मैं केक का बिजनेस कर लूं. इट्स अ रैंडम स्मार्ट start. How many of you are in the space of random starting? How many of you are underpricing? सस्ता बेच रहे हो कि किसी तरह से कस्टमर चला ना जाए, कि नहीं कोई भी तरीके से, लेकिन एट द एंड कार्टन और कार्टन भरे हुए सामान पड़ा है, रोकड़ा नहीं है. धारा राहिनी, आप लोग के हैंड रेज्ड है, प्लीज यूज द चैट, अदरवाइज आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड दैट वेदर यू वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस और इज इट फॉर एनीथिंग एल्स, राइट? तो जल्दी से बताओ कि हाउ मेनी ऑफ यू हु आर ऑलरेडी वर्किंग आर अंडर प्राइसिंग, और जो काम नहीं कर रहा है उसको ये डर लग रहा है कि मुझे क्लाइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहला डर. दूसरा, वो मुझे पूरे पैसे देगा कि नहीं देगा. जल्दी से बताओ, आर यू इन दैट स्पेस? आर यू इन दैट स्पेस? हाँ, कि मुझे क्लाइंट मिलेगा कि नहीं. अगर नहीं कर रहा हूं कि क्लाइंट कैसे मिलेगा, अभी तो मैंने बिजनेस शुरू ही नहीं किया, पहले मेरी जान निकली हुई है कि भैया मेरे को क्लाइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा. हाँ, ये देखो मालती कह रही है डर लग रहा है. बिल्कुल कोई सिस्टम नहीं है बिजनेस में, क्योंकि हमें सिस्टम पता नहीं है, क्योंकि हमें कभी कोई सिस्टम सिखाया नहीं गया. और ये मत सोचो कि इट इज नॉट, इट इज विद विमेन, इवन मेन they also do the same. Many of the men also start without any planning, without any system, without anything. आज how many of you believe कि नेचर और प्रकृति और भगवान आपके साथ में जब होते हैं तो आप एक राइट जगह अपने आप पहुंच जाते हो? How many of you believe into this? How many of you believe into this कि आप अपने आप राइट स्पेस पे पहुंचते हो? सो आज ना मेरा ये मानना है कि आज आप इस वेबिनार में हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी बिगनिंग के लिए है ना? तो ये क्या कह रही है नेहा, यू वांट टू से समथिंग, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड से समथिंग. हाँ जी, मैं ये बोल रही हूँ कि प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद ये तो खत्म हो गया है कि मतलब जैसे डर तो खत्म हो गया है. बिल्कुल आपका डर खत्म हो गया बिल्कुल. हाँ, कि मतलब बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ये मतलब कम होना शुरू हो गया है. बिल्कुल हाँ, नहीं, और बेटर भी हो रहा है, यू आर गेटिंग गुड ऑर्डर्स. यस मैम. हाँ, सो आपको बता दो नेहा, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, लोगों को पता होना चाहिए कि आप कहाँ से बोल रहे हो, क्या है. आई एम नेहा, आई एम फ्रॉम जलंधर.
I have a sweet shop by the name of Sani Sweets, and मतलब मैंने join किया ये जो मैम का program for packaging and all, and मुझे अच्छा response भी मिल रहा है from the clients. और अभी देखो, अगर आप देखो नेहा थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे हो, है ना? Yes, हाँ, yes, आप ma'am. देखो ये नेहा थोड़ा, नेहा, लेकिन ये ही एक प्रोसेस है डर खत्म करने Yes, का. ma'am. दिस Yes, इज द, ma'am. है ना, दिस इज द हाँ जी, प्रोसेस. थैंक यू नेहा. कैन वी ऑल अप्लॉज फॉर नेहा, कि नेहा Thank you, को ma'am. डर लग रहा था पर तब भी नेहा ने बोला. Thank you. थैंक यू नेहा फॉर शोइंग द करेज. थैंक यू सो मच. Thank you. हाँ, इसी तरह से हमें आगे बढ़ना है. तो अब आप जो है ये जान लें कि बिजनेस को सक्सेस करने का फॉर्मूला क्या है. लिखोगे प्लीज आप लोग, राइट डाउन. स्किल, सिस्टम एंड सेलिंग कॉन्फिडेंस. पहला है स्किल, कि उस बिजनेस की जो जरूरतें हैं, हमें लगता है हमने एक हैम्पर बना लिया और हम उसको उसी वक्त बेच सकते हैं, पर आपको उसकी प्राइसिंग करनी, राइट मात्रा में राइट फूड डालना जो कस्टमर ले. कस्टमर कहता है जी मुझे तो 1500 का हैम्पर चाहिए, बादाम की बर्फी दे दो. बादाम की बर्फी है 1800-1900 रुपए किलो से शुरू हो रही है. आप कह रहे हो यार मैं इसमें कैसे डाल के दूंगी. सो स्किल टू प्राइस, skill to choose the right material, skill to choose the flowers, the decor. पंजाब में कैसा रंग चलेगा, सदर्न इंडिया में कैसा चलेगा. नेहा जलंधर में है, शांति is sitting in Hyderabad. They're two different places. अभी संतोष मैसेजिंग कर रही थी इको फ्रेंडली, शी सिटिंग इन कोयम्बटूर. तो मे बी सबने हैम्पर बनाना है, पर सबके हैम्पर अपने क्लाइंट के हिसाब से अलग होंगे. सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप, इज स्किल. स्किल के अंदर आता है नॉलेज एंड एक्सपर्टीज. सेकंड इज सिस्टम. सिस्टम आता है अपनी कैपेसिटी को जान के, और फिर ओके मैं ये बनाऊंगी, ये ऐसे करूंगी, इसको ऐसे प्रमोट करूंगी, ये मेरा क्लाइंट है, क्लाइंट को उससे मैच करूंगी, और मुझे प्रोजेक्शन बनाऊंगी कि मुझे इतनी प्रॉफिटेबिलिटी लेकर आनी है. उसके लिए मैं कितनी रेंज का बनाऊं, मेरा एमआरपी क्या होना चाहिए, मेरा डिजाइन. सिर्फ डिजाइन और अच्छा प्रोडक्ट से बिजनेस नहीं बनता. हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट यू हैव अ गुड प्रोडक्ट, कि मैं अच्छा बना सकती हूँ पर बिकता नहीं है. हाउ मेनी ऑफ यू से सो. हाउ मेनी ऑफ यू. शांति उसी स्पेस में थी, बिल्कुल थी. प्रीति इज ऑल्सो सेइंग यस, कि मैं. तो कारण ये है कि पहले तो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, क्या वो रियल के अंदर मार्केट के लिए अच्छा है, जानना, रियलिटी चेक. दूसरा, क्या मेरी भाषा वो है, इसको हम वैल्यू कॉन्वर्जेशन कर रहे थे. 6 तारीख को हमारा उसका प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए वेबिनार भी है. आप कहोगे पैकिंग के कोर्स के अंदर आप वैल्यू कॉन्वर्जेशन सिखा रहे हो. अरे भाई कितना भी अच्छा बना लोगे, अगर अपने कस्टमर से बात ही नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे. कस्टमर को पता कैसे करते हैं, ये ले लिया, मैं क्या चीज उठाऊं, क्या चीज उठाऊं, यहाँ से मेरे अगल बगल में, चलो मैं ये लड्डू का डब्बा है, हाँ ले ये बहुत अच्छा है, मेरा लड्डू यूनिक है, देसी घी में बना हुआ है, इसके अंदर मैंने ऑर्गेनिक आटा डाला हुआ है. अरे भाई हर बंदा ये बोलता है मेरा लड्डू अच्छा तेरे लड्डू से. प्रश्न ये है कि क्लाइंट या ये सुनना चाह रहा है कि तेरा लड्डू अच्छा या मेरा लड्डू अच्छा, या क्लाइंट ये देखना चाह रहा है हाइजीन, क्लाइंट ये देखना चाह रहा है प्राइस पॉइंट, क्लाइंट क्या सुनना चाह रहा है. तो वैल्यू कॉन्वर्जेशन वेयर क्लाइंट, ये कॉन्वर्जेशन जब आपको आ जाती है तो फिर आप बेचते नहीं हो. क्लाइंट कहता है मुझे दे दो, आई वॉन्ट टू बाय, यू डोंट सेल. सेलिंग बिकम्स अ बाय प्रोडक्ट. हाउ मेनी ऑफ यू वांट अ बिजनेस जहां पे क्लाइंट कह रहा है कि मेरे को दे दो. तुम लोग यहाँ पर आए हो सारे जने आए हो इंस्टाग्राम से मेरा एक वीडियो देख के. कितने जने आए हैं मेरा एक वीडियो देख के यहाँ. How many of you? Shivani has paid for the next session and she's here. How many of you are here? तो भाई मैंने वो भाषा में बात की है जो भाषा आप सुनना चाहते हैं. मेरे एल्यूमिनाई स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, मेरे प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, और वो इस बात को साबित करते हैं कि जो मैं बोल रही हूँ वो मैं डिलीवर करूंगी. राइट ये झूठ नहीं है. तो आप ये समझ लो कि ये छलावा नहीं कर सकते हो आपकी अच्छी बातें करके, ऊपर से अच्छे दिख के, और आप डिलीवर नहीं करोगे. कैन दैट वर्क? कैन दैट वर्क?
एक बार एक क्लाइंट को ले लोगे, दोबारा तो नहीं आएगा, राइट? तो वैल्यू कॉन्वर्जेशंस, तो आपका स्किल सिस्टम के अंदर बात कैसे करनी है। आज मैं 2 चीज बना रही हूँ, मेरे पास 100 पीस का ऑर्डर आ गया तो क्या होएगा, 1000 पीस का ऑर्डर आ गया तो क्या आएगा, कौन से सिस्टम डालूंगी, सोर्सिंग किससे करूंगी, कैसे करूंगी, क्या लूंगी, कितना लूंगी, रिसोर्सेस को कैसे यूज करूंगी, ये सारी चीजें सिस्टम बनाती हैं। और ये फिर आपको जब सिस्टम बनते हैं, जब आप मार्केटिंग शुरू करते हैं आप, देन कम्स सेलिंग कॉन्फिडेंस। जब आपको विश्वास होता है कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, तो आपको विश्वास होता है कि वो क्लाइंट से बिल्कुल मैच कर रहा है, जब आपको ये विश्वास होता है कि दैट आई एम एबल टू प्रोवाइड द बेस्ट, देन अपने आप वो चीजें बिकती हैं। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? निशा हैज मैम अ क्वेश्चन। यस जी निशा, या मैम मुझे एक ये बात पूछनी थी कि सी नाउ आई एम इन हैम्पर्स, लेकिन खाली हैम्पर्स से काम नहीं होता है, तोरण भी रखना होता है, दिया भी रखना होता है, वो सब, तो वो सही है क्या? बिकॉज आई कैन नॉट मेक एवरीथिंग, तो आई विल सोर्स इट आउट, राइट? तो ये क्वेश्चन हम लेंगे एंड में। मैंने बोला ना कि हम ओके, हर चीज से पैसे। चल, तो गिफ्ट पैकेजिंग का इंडस्ट्री जो है ना, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये हाँ छोटी इंडस्ट्री नहीं है। अगर जो लोग इस काम में नहीं है, मैं उनको ये बता दूं, इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री। हम्म और यहाँ पे हम्म मल्टीपल चैनल्स ऑफ जी अर्निंग है, जैसा कि निशा हम्म आपको बता रही है, there's a multiple हम्म channel of earning. We will हम्म talk about it once I give you all the 3 steps, right? थैंक यू अब हम आते हैं स्टेप 3 पर, कि घर को छोड़े बिना, घर को डिस्टर्ब किए बिना, बिना कोई शॉप खोले, बिना कोई बहुत बड़ी टीम को रखे, बहुत सारी मशीनों के बिना जो आप बिजनेस कर सकते हो, वो है गिफ्ट पैकेजिंग का बिजनेस। बड़े आराम से, कोई मेस नहीं है यहाँ पे। एक टेबल स्पेस चाहिए आपको, एक बेसिक मटेरियल्स चाहिए शुरू होने के लिए। हाँ, आपको अपनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज और फर्स्ट 2 स्टेप्स के ऊपर वर्क करना है, राइट? आप फेस्टिवल स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, आप हैम्पर स्पेशलिस्ट, ओनली हैम्पर स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं। यू कैन बी ओनली हैम्पर स्पेशलिस्ट, यू कैन बी ओनली बेबी अनाउंसमेंट स्पेशलिस्ट, यू कैन बी ओनली होम डेकोर स्पेशलिस्ट, और यू कैन बी एवरीथिंग। और मैं किसी की कही सुनी बातें नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी लाइफ का एग्जाम्पल दूं। आप में से कितने जने मुझसे पहली बार मिल रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम? हाउ मेनी ऑफ यू पुट इट? सो आई कैन सी नीति, आई कैन सी नीता, प्रीति और मीटिंग। सो मेरा नाम जो है वो शालिनी बेरीवाल है। मैं क्यों बताना चाह रही हूँ, मैं बात करना चाह रही हूँ घर से काम की। एंड मैं एक बहुत ही रिच फैमिली की लड़की, बहुत रिच फैमिली में ब्याई गई, और 1998 में दोनों फैमिलीज इकट्ठे क्रैश करी। और हमारे घर में लड़कियों को, बहुओं को बहुत सहेज के, बहुत प्यार से रखा जाता था, और घर में कोई काम नहीं था, खाना भी नहीं बनाना पड़ता था। मुझे 42 इयर्स की उम्र तक खाना भी नहीं बनाना आता था ठीक से, क्योंकि कभी बनाया भी तो कोई बुक पढ़ के, कोई कुक के साथ में कुछ कुछ कर दिया। जब मैं क्राइसिस में आई तो मुझे फूल बहुत अच्छे बनाने आते थे, फ्लावर्स मैं बहुत खूबसूरत बनाती थी। उस जमाने के अंदर, आई एम 65 टुडे, उस जमाने के अंदर लड़कियों को फूल पत्ती, पैकिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट ही सिखाया जाता था। मैंने सोचा मैं एक्सपोर्ट करूंगी, लेकिन पैकेजिंग मुझे बिल्कुल भगवान से मिली। किसी ने मुझे कुछ पैकिंग करने बोला, वो पूरी स्टोरी है, किसी दिन सुनाऊंगी आपको। 2002 में मैंने पैकिंग का काम घर से शुरू किया। 3 बेडरूम में का फ्लैट दिल्ली में आई मैं। दिल्ली में मैं किसी को नहीं जानती थी, कानपुर में मेरी शादी हुई थी। 2002 6 अगस्त को मैंने पैकिंग करना शुरू किया। 2007 में मैं घर से काम करके 2.5 करोड़ का टर्नओवर कर रही थी विद 5 पीपल टीम। तो मुझे अगर कोई भी ये बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं काम कैसे करूं, मेरे को काम करना नहीं आता है, तो मैं कहती हूँ, गंदी बात बोलती हूँ पर कहती हूँ, बुलशिट। टुडे विद इंस्टाग्राम, हमारे पास तो इंस्टाग्राम भी नहीं था, with Instagram, with social media, with artificial intelligence, with Pinterest, with so many programs। कोई programs भी नहीं थे उस समय प्रोफेशनल लेवल के किसी भी चीज के कोई खास।
और हर प्रोग्राम को करने के लिए उस शहर में जाना पड़ता था क्योंकि ऑनलाइन नहीं होते थे। हाँ, तो और उस समय अगर ये बिजनेस इतना ग्रो हो सकता था तो अब तो कोई एंड नहीं है। और 2007 में मैंने एकेडमी शुरू की। लोग मुझे बावला समझते थे, पागल समझते थे, ये समझते थे कि जो चीज तुम्हें पैसा दे रही है वो तुम लोगों को सिखाओगी। लेकिन मेरा ये मानना था कि जो मैंने 3 साल पैसे की दिक्कत के देखे, मेरी इतनी स्मार्ट डॉटर, इतनी इंटेलिजेंट डॉटर, इतनी ब्यूटीफुल डॉटर, उसकी शादी नहीं हो रही थी क्योंकि मेरे पास दहेज में देने के लिए पैसे नहीं थे। बहुत सारी चीजें तो मैंने ये रियलाइज किया कि जब विमेन के पास पैसे नहीं होते हैं ना तो सब सफर करते हैं। विमेन तो करती हैं, सब सफर करते हैं। और समहाउ कम्युनिकेशन क्या होता है, ससुराल में कोई भी कह देता है जा तेरे को जाना है चली जा। पीहर वाले कहते हैं कि ससुराल में ही रहना है, वही तेरा घर है। आई डोंट नो वेदर यू हैव फेस्ड इट और नॉट, बट many of the women has faced it. The only solution to this is कि आपके पास अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, बिना अपने परिवार को छेड़े अप्रूट किए। एक तरीका निकालना जहां पे आप काम कर रहे हो और परिवार का इस ढंग से ध्यान रख रहे हो कि आपकी पर्सनल नीड फिजिकली काम करने की उतनी नहीं हो। तो जब आप पैसे कमाओगे तो स्टाफ अपने आप आता है माय डियर, अपने आप आता है। और बहुत ऑपोजिशन के बाद में मैंने ये काम शुरू किया क्योंकि लोगों को लगता था गिफ्ट पैकेजिंग के काम में तो कुछ है ही नहीं। आज इस काम से मैं आज 2026 25 साल हो गए मुझे। मेरी बेटी की शादी मैंने 5 स्टार होटल के अंदर की, मेरे बेटे को इंग्लैंड में पढ़ाया, मेरे पास मेरा अपना घर है, अपने ऑफिस हैं, शेयर्स हैं, सब कुछ है, एवरीथिंग आई हैव। आज अगर मैं चाहूँ तो आज काम बंद करके जो भी मेरे जिंदगी के 15-20 साल है बड़े आराम से बिता सकती हूँ। पर मैं काम इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं एक मिशन में हूँ कि मैं विमेन को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में हेल्प करूंगी। और जिस इंडस्ट्री ने मुझे इतना पैसा दिया गिफ्ट पैकेजिंग की, उसी इंडस्ट्री में, क्योंकि उस इंडस्ट्री में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उस इंडस्ट्री में आप इवेंट कर सकते हैं, उस इंडस्ट्री के अंदर आप सप्लाई कर सकते हो। ऐसा हिसाब नहीं है कि मैं खड़ी होके बेचूं, कोई बात नहीं, प्रोडक्शन एंड सप्लाई, ऐसा हिसाब नहीं है कि मैं खुद बहुत बनाऊं, कोई बात नहीं, बना हुआ लेके हम बेचेंगे। बहुत सारे तरीके हैं इस इंडस्ट्री में काम करने के। पर पहले अपने आप को, मन को मजबूत करके ये डिसाइड करना कि मैंने ग्रो करना है, मैंने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, मैं अपना अस्तित्व खुद बनाना चाहती हूँ और उसके लिए मैं घचपच नहीं करूंगी। आई विल बी देयर, आई विल बी देयर। अगर किसी को ये लग रहा है कि सीधा रोड मैप है तो ऐसा नहीं है। जैसे अप डाउन सारा टाइम होता है, कुक है कुक नहीं है, सफाई वाली है सफाई वाली नहीं है, ये है, बिल्कुल ऐसा ही है सब कुछ। जैसे घर चलाते हैं बिल्कुल वैसा ही है, इट्स लाइक दैट ओनली, बट यू हैव टू पुट इट। तो ये चॉइस हमारी होती है कि हमारा जो दिल कर रहा है वैसे करके बिजनेस चलाएं, फिर रोने गाने करें कि मुझे तो आता नहीं, मैं करूं क्या, क्लाइंट नहीं मिला। या हम उसे एक प्लान ढंग से, सिस्टम के साथ, ट्रेनिंग के साथ, कोचिंग के साथ। आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल माई प्रोग्राम हेयर। अगर मुझे प्रोग्राम बेचना होता तो मुझे फ्री वेबिनार लेने की जरूरत नहीं थी। मेरी टीम आपको कॉल करती, आपके नंबर आए हुए थे और आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताती। यहाँ आपको बुलाने का मतलब सिर्फ ये है कि आप देखिए, अगर आप काम कर रही हैं तो कहाँ पे आप घचपच कर रही हैं, और अगर आपने काम चूज करना है तो आप लॉस ना करें, श्योर फुटेड चलें, अपने आप को सिस्टम, प्रोसेस, टेक्निक में डालकर, स्ट्रेटजी में डालकर और उसको प्लान करके देन यू डू। सो यू रियली नीड टू, आफ्टर यू हैव स्टार्टेड मेकिंग, देन हाउ टू प्राइस। प्राइस का मतलब ये नहीं है कि मेरा जो चीज बनाया है उसके पैसे आ जाएं। इट ऑल्सो मीन्स कि मुझे प्रॉफिटेबिलिटी हो और मैं उस पैसे को दोबारा बिजनेस में डाल सकूं और मेरे घर को चला सकूं और सेविंग में भी डाल सकूं। नहीं तो कोई फायदा नहीं है। नहीं तो हर रोज कुआं खोदोगे, हर रोज कितने दिन तक कुआं खोदोगे भाई। बिजनेस को ऐसे रन करना कि वो आपको प्रॉफिटेबिलिटी इतनी दे कि आप कुछ जमा कर सको फ्यूचर के लिए, अपने दोबारा से री इन्वेस्ट कर सको बिजनेस के अंदर, अपने शौक पूरे कर सको और उसे ग्रो करो। ऐसा ही बिजनेस आपको करना है, अदरवाइज देयर इज
नो पॉइंट. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? कोई क्वेश्चन है इसको लेकर? अभी ना ये संतोष है नीचे. व्हेन शी जॉइन माय प्रोग्राम एंड शी सेड मुझे इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल हैम्पर बनाने हैं. तो हमारा एक छोटा सा 15-20 मिनट का इसका एक कॉन्वर्सेशन होता था सिर्फ इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल का. आई एम थैंकफुल टू संतोष एंड आई वांट संतोष टू शेयर ऑल्सो. वो आज सीख रही है, लेकिन जो वो आज सीख रही है उसके अगले 10 साल तक she will make more money than any ordinary gift packer. संतोष, can you please unmute yourself? ये कोयम्बटूर के नाम से यहाँ आई हुई हैं. Let me just spotlight. Listen to her. She's talking future here. She's talking future. संतोष, पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और ये मुझे बताएं, आप इको फ्रेंडली सस्टेनेबल हैम्पर्स पे इतना एम्फेसिस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताओगे क्यों कर रहे हो? प्लीज. तो मैं संतोष कोयम्बटूर से. मैंने किया है पैकिंग का बिजनेस फॉर 5 to 6 years, बट 10 years बैक तब मैं नॉर्मली करती थी. बट आफ्टर दिस 10 years गैप, ओवर द पीरियड, लाइक इवन मेरे लाइफस्टाइल काफी चेंज हुआ है. ईटिंग, लिविंग completely like aligned with nature. So I wanted to start this business again, but with the concept of eco-friendly and sustainable basis पे. But I was not able to think beyond. So I joined the MAP program. और जो सर्कल मेरा छोटा सा था ऑफ माई थिंकिंग, ठीक है रिसर्च हम कर रहे हैं, बट गूगल कैन जस्ट गिव यू वर्ड्स. वो पूरा आपको जो मेथोडोलॉजी है आई एम गेटिंग थ्रू शालिनी मैम, और शी इज लाइक हेल्पिंग मी आउट एंड मेकिंग द सर्कल बिगर. तो वो सर्कल बिगर होने से हमें कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आते हैं. वी कैन गो डीप इनटू वन कॉन्सेप्ट इटसेल्फ. सो दैट्स व्हाट. सो 1 मिनट संतोष, यहाँ पे प्रश्न ये है, जो आपने इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल चूज किया, इज इट लिंक्ड विद द फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्री? 100%. आगे अभी ये अवेयरनेस क्रिएट हो रही है सभी में. एवरीबडी इज गेटिंग अलाइन टू नेचर, और वो हर एस्पेक्ट में इको फ्रेंडली सस्टेनेबल पार्ट, चाहे हमारा फूड है, चाहे हमारी लाइफस्टाइल, डेकोर, बाथिंग, एवरीथिंग, लाइक नो कपड़े तक भी लोग आजकल नॉर्मल 1000 रुपए का आ जाएगा. तो ऑर्गेनिक इको फ्रेंडली थोड़ा कॉस्टली होता है डेफिनेटली, बट वो उसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं. सस्टेनेबिलिटी, हाउ इट इज सॉफ्ट टू द मदर अर्थ, नेचर को कितना प्रोटेक्ट करता है. तो ये अवेयरनेस बढ़ रही है, और अभी जो जनरेशन है वो जब बड़े हो जाएंगे, दे आर गोइंग टू डेफिनेटली गेट अलाइन विथ इट. सो दैट्स व्हाट आई थिंक. Wonderful, Santosh. Can we all applause for Santosh? ये आज का 5 साल से अभी से आगे का व्यू है. She is already focused on that. Neeta, you want to say something? अंजलि जी, please mute कर लें अपने आप को. Yes, Neeta. Yes, I would like to add to this because I'm working as a Pune climate warrior also. So because we all know there is no planet B, like we cannot say that there is a lot of pollution and environment is disturbed, so we can go to some other planet and stay. We only have this one planet, and I can completely relate to what she was saying, that sustainable packing is must, because we are also avoiding those plastic packaging for the flowers, and for the gift packing also, whatever silver paper that we use, that is again a plastic, kind of plastic. So yeah, avoiding this is must for saving our mother earth. So if we come up with sustainable packaging, if we advertise ourselves as sustainable packaging, I think we'll do wonders. So thank you so much. Neeta, thank you so much. तो आप ये सोच देखिए कि आज ये सिर्फ हैम्पर या गिफ्ट पैकेजिंग बिजनेस नहीं है. This is, she wants to get into the corporate packaging. We are talking to the corporates already कि आपको क्या प्राइस पॉइंट पे चाहिए, क्या डिमांड चाहिए, क्या चाहिए, तो कर क्या रहे हैं. क्योंकि संतोष एक स्टूडेंट ने बोला दैट आई वांट टू एक्सेल, तो ये समझ में आ रहा है कि ये सबके लिए है. तो वी आर गोइंग बैकवर्ड. पहले कस्टमर से बात कर रहे हैं, तुम्हें क्या क्या कॉर्पोरेट के लिए चाहिए होता है, क्या क्या चीजें ऐसे चाहिए होता है. स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी एज अ ग्रुप, as a whole group of PP19 is working on it, and then we are going to put it together in the next month. हमारा गुरमे का सेशन 17 तारीख को शुरू हो रहा है. Thank you Santosh for bringing it in.
और ब्रिंगिंग इट इन। तो इस तरह से थैंक यू मैम। आप एक बिजनेस में नयापन और जो समय की डिमांड है उसको लेकर आते हो। जिस समय हम अकेले होते हैं वैसा नहीं कर पाते। चलिए अब हम देखते हैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होती है। टेक डाउन योर पेपर एंड पेन, टेक डाउन योर पेपर एंड पेन। सपोज करिए आपने एक हफ्ते में 5 हैम्पर बेचे। राइट डाउन। एक पूरे हफ्ते में, मीन्स हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। मटेरियल कॉस्ट अगर हमारी 30% है, आप समझिए, लेबर मटेरियल कॉस्ट जो भी 30% है, देन उसके बाद में लेबर कॉस्ट है, और हम 20% का भी मार्जिन रखते हैं, तो हम 800 रुपए अगर हमने कमाए, 5 हैम्पर में कितने पैसे कमाए हमने? हाउ मच मनी हैव वी अर्न? 800 मल्टीप्लाइड बाय 4, नहीं 5 है, 800 मल्टीप्लाइड बाय 5, 4000 रुपीज guys, 4000 रुपीज। यू कैन यूज द चैट। और तो हर हफ्ते अगर मैं सिर्फ 5 हैम्पर बेच रही हूँ, सिर्फ 5, ज्यादा नहीं, हर हफ्ते अगर मैं 5 बेच रही हूँ, बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ, तो मैंने 4 हफ्ते के अंदर हर हफ्ते 4000 कमाए, तो मैंने महीने के आखिर में 16000 रुपए कमाए। Yes, Yogita, wonderful. This is, I'm talking when I'm not working much, when I'm not putting my mind much, I'm just doing. The possibility of earning from home is great. एक 5 रुपए का रिबन जो 1 मीटर होता है, वो आपको, हाँ, शैली कहती है 800 रुपए एक हैम्पर में नहीं बना सकते। शैली, मैं कोई भी हैम्पर जब तक 1500 नहीं कमा लूं नहीं बेचती हूँ। तो आपको, तो ये जो कॉन्वर्जेशन आ रही है, अगर मैं हैम्पर बेचूंगी 800 रुपए का, तो 800 नहीं कमा सकती हूँ। लेकिन एक एवरेज प्राइस जो आज के दिन अच्छे हैम्पर की है, दैट इज नियरिंग 2000 रुपीज, 1800 to 2000 रुपीज, एंड इफ प्लेड वेल यू डू गेट दिस मच। अगर आपको इतने पैसे नहीं मिल रहे हैं ना, तो आप या तो प्रोडक्ट गलत बना रहे हो, या क्लाइंट गलत चूज कर रहे हो। और यार, स्लेवरी के लिए बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। शैली, अगर आपका हैम्पर आपको 800 रुपए नहीं देता, कितने देता है? मैं आपसे पूछ रही हूँ सबसे। आप एक हैम्पर में 250 रुपए कमा रहे हो, 10 हैम्पर में 2500, 100 हैम्पर में कितने? 25,000। हाँ जी, इज इट वर्थ इट? और उस 25,000 में आप अपनी कीमत नहीं लगा रहे, अपने घर की, अपनी लेबर की कीमत नहीं लगा रहे, अपने टाइम की कीमत नहीं लगा रहे हो। किस लिए करना है? then you have to, so Shelly, you have to pick up multiple, so you will earn from packing, you will earn from the food which you put in, आप जिससे खाना लेंगे उससे भी पैसा उसमें कमाएंगी। you will also have a gifting element to it, जिससे गिफ्ट लेंगे उससे भी। so एक घंटे के वेबिनार में मैं आपको ये नहीं बता सकती। मेरे पास स्टूडेंट है सीतापुर में, सीतापुर लखनऊ से 1-1.25 घंटे का रास्ता है, छोटा सा कस्बा भी नहीं होएगा, and she sells for 5,000-6,000 rupees a piece. We have student in Biawad, we have student in, हमारा जो अभी present batch है उसके अंदर बुरहानपुर, we have a student in Kasganj, we have a student in Hisar. They are all making money and they are all on their way to make money. अगर हम ऐसा, मैं अमृतसर की लड़की हूँ खुद, I'm an अमृतसर girl myself. And Ma'am, Shelly is asking कि do Amritsar people spend so much? She is also from Amritsar. Yes, तो आप क्या, अमृतसर is the India's one of the most fashionable city. Amritsar has the most flauntable Fiki Flow chapter. Amritsar, every nook and corner has a restaurant. Women don't cook there. They cook the lessest. तभी वो सारे फूड जॉइंट चलते हैं। मैं 5 तारीख को अमृतसर जा रही हूँ बल्कि। If a person, and there are big businesses there, there's a thread, there's a processing houses, there is a, so you need to see मेरा क्यों नहीं बिक रहा है, मेरा क्यों नहीं बिक रहा है। अगर वो दिल्ली से लाके इतने पैसे दे रहा है, अगर मुंबई से लाके इतने पैसे दे रहा है, तो मेरा क्यों नहीं बिक रहा है? there's a gap somewhere where you are not. मैं फिर आपको बोल रही हूँ, Amritsar is bigger than Jalandhar and Neha is doing well over there. We have a student in Moholi, they are doing so good. तो हमारे अंदर का वैल्यू कॉन्वर्जेशन, हमारे प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन,
everything matters. It is not. So business needs to be run like a business. We don't रन लाइक अ बिजनेस. हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको बेचने के लिए शुरू हो जाते हैं. कितने जने इसको एग्री करते हैं? कुछ बनाया बेचो, कुछ बनाया बेचो, कुछ बनाया बेचो. How many of you do this? हाँ जी, बताएंगे आप मेरे को? How many of you have really thought about कि मैं क्या बोलूंगी, मैं जब इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालूंगी तो मेरा क्लाइंट क्या सुनना चाहता है, ऑर्गेनिकली कम्युनिटी कैसे बिल्ड करूंगी मेरे अराउंड, वेयर पीपल look at me and people would like to buy from me. How many of you have create a branding statement जहां पे लोग ये समझे अगर मेरे को लेना है तो मुझे इसी से लेना है और किसी से नहीं लेना, इसी से लेना है, इसी से लेने से मेरी इज्जत बढ़ जानी है. आप समझ रहे हो? देयर इज बिजनेस इज नॉट. जैसे एक होम मेकर का एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. आप खाना बनाते हैं जिसके अंदर 2 सब्जी, 1 दाल है ना, 1 दाल है, थोड़ा दही है, थोड़ा आटा है. एक सब्जी को बनाने में 10-12 कंपोनेंट लगते हैं. धनिया, हल्दी, नमक, घी, जीरा, हरा धन, लगता है कि नहीं? 10-12 कंपोनेंट. और फिर एक सब्जी मीन्स एक थाली के अंदर कम से कम 50 से 60 कंपोनेंट है 50 से 60 कंपोनेंट है. तो वो 2 सब्जी और वो सारा बनता है. इसमें से आप कोई भी कंपोनेंट मिस कर दोगे, वो खाना इतना टेस्टी होगा? नमक करोगे तो वो मिसिंग है, हल्दी करोगे तो वो मिसिंग है, कुछ भी. इसी तरह से बिल्कुल बिजनेस के जितने भी 7 फंडामेंटल्स हैं, ऑपरेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, सेल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फाइनेंसेस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, कहीं से भी कुछ मिस हुआ, वो बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता. और अगर करेगा कुछ दिन लोग पैसे कमाएगा फिर ठुस, क्योंकि पहले रिश्तेदार कुछ कुछ खरीद लेंगे, कुछ फ्रेंड्स खरीद लेंगे, बाद में वो भी थक जाएंगे, वो भी नहीं खरीदेंगे. ठीक है जी. तो नाउ आई एम इनवाइटिंग यू पीपल टू आस्क क्वेश्चंस, टू लेट मी नो वेयर आर यू स्टक एंड देन टेक इट फ्रॉम देयर. हाँ जी, निशा आप कुछ कहना चाह रही थी, आपका मैंने हैंड रेज देखा था. आप अनम्यूट करें अपने आप को. जी. हाँ जी, बताएं. मैम मेरे को ये पूछना था कि अभी जैसे मैं ट्रूजो पैकिंग में हूँ और हैम्पर्स में हूँ, तो आई एम गुड ओके एट इट, बट मुझे सेल करना, वो सब करना थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है. मतलब मुझे और मुझे ये भी पूछना है कि अगर हम लोग सपोज एक हैम्पर बेचते हैं, एक वेडिंग इनवाइट का हैम्पर देती हूँ, तो उसके अंदर जो काजू, बादाम, बादाम बर्फी, वो भी इंक्लूसिव करके ही देना होता है? सो आपके 2 प्रश्न है. जी. 2 प्रश्न है यहाँ पे. एक ये है कि क्या मेरा हैम्पर इंक्लूसिव ऑफ ऑल मटेरियल होगा, खाना पीना, पैकिंग, सब जी. कुछ. 1. और सेकंड आपका है क्वेश्चन ये कि मैं बना तो लेती हूँ पर मैं सेलिंग के अंदर मुझे हिचक होती है. राइट. आज अभी आपने नेहा को देखा था जब वो शेयरिंग के लिए आई तो थोड़ी नर्वस थी. इस तरह से आपको अपने आप को ट्रेन करना होगा मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए. अच्छा प्रोडक्ट होने से सिर्फ कुछ भी नहीं होगा. यू नीड टू डू दैट. नंबर 1. नंबर 2, whether I include everything or not, that depends upon the price points of your packaging and how your customer. तो जैसे मैं इतने सालों से पैकेजिंग में हूँ, मैं मेरी पैकेजिंग का प्राइस अलग देती हूँ, फूड की सिलेक्शन अलग देती हूँ, क्योंकि मुझे फूड में वो मार्जिन नहीं मिलता जो मेरी पैकेजिंग में मुझे मिलेगा. लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लो बजट काम करते हैं, मीन्स जिन्होंने 15-16 से नीचे का हैम्पर बेचना है, उनके लिए कई बार ये एडवाइजेबल है कि वो खाना खूना लगाकर और फिर उसको एक ही प्राइस करके दें और किसी को बोले कि मैं तो आपको कंप्लीट ऑफर दे रहा हूँ. कंप्लीट तो फिर उसमें क्लाइंट ये नहीं पूछता. जैसे इट इज मोर लाइक अगर आप किसी मॉडर्न बाजार में जाओ, लमाश में जाओ, वहां पे रेडी बास्केट्स मिलती हैं, खाना भी लगा हुआ है, पैकिंग भी करी हुई है, तो इट्स मोर लाइक दैट कि आपने कंप्लीट रेडी करके दे दिया और कस्टमर ने उठा लिया. जनरली प्रीमियम कस्टमर ऐसा नहीं लेता. प्रीमियम कस्टमर आपसे जरूर पूछेगा कि उसके अंदर क्या है, क्या नहीं है, अच्छा है, बुरा है, वो अपना चॉइस देगा. तो दैट डिपेंड्स अपॉन योर बिजनेस मॉडल. बिजनेस के तरीके क्लाइंट सेंसिटिव, product sensitive, client and product sensitive, client sensitive but product
फोकस, ऐसा भी हो सकता है प्रोडक्ट फोकस, but client centric. There are a lot of things to go together into the business. Then Nisha, what kind of a turnovers are you doing? Ma'am, it's just a start. मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं, बड़ी मजेदार एक रियल लाइफ स्टोरी सुना देती हूँ। जी। मैं कंसल्टेंट हूँ मिठाई वालों के साथ में। ओके। मैं हाँ, तो मैं 800 मिठाई वाले थे और मैं उनको एक प्रेजेंटेशन दे रही थी। तो उनमें से किसी ने मुझे बोला, मैं आपका पैकिंग क्यों इम्प्रूव करूं, मैं तो एक हफ्ते के अंदर 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर करता हूँ, हफ्ते में 10 करोड़ का टर्नओवर करता हूँ। ओके, हफ्ते में 10। मैंने उनसे बोला, जी इंडस्ट्री का स्कोप क्या है? इंडस्ट्री के स्कोप से मतलब है कि बोले जी इंडस्ट्री का तो स्कोप है कि 1000 क्या लाखों करोड़ आप हर हफ्ते कर सकते हो, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये। तो मैं अगर जिस इंडस्ट्री का स्कोप ये है कि मैं हफ्ते के अंदर, मैं कहती हूँ चलो जी बड़ी बातें ना करूं मैं, कि मैं अगर उसमें 1000 करोड़ कर सकती हूँ और आप 10,000 से खुश हैं, 10 करोड़ से खुश हैं, तो मैं ठीक है फिर, राधे राधे। तो अगर गिफ्ट पैकेजिंग की इंडस्ट्री के अंदर मैं 2000 कोविड से पहले आई वाज डूइंग ऑलमोस्ट 7.5 करोड़, मैं 7-7.5 करोड़ का टर्नओवर करी थी। अब वो बिजनेस मेरे बेटे के पास है, आई एम इनटू ट्रेनिंग एंड आई एम इनटू कंसल्टिंग। गिफ्टिंग का बिजनेस अब मेरा बेटा देखता है, मैं नहीं देखती हूँ, राइट, क्योंकि मैं इतना काम ही नहीं कर सकती, अब मेरे पास बहुत बहुत सारी चीजें करने को। तो आपको अपने आप से ये पूछना है, अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, कि मैं काम कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, तो मेरा प्रश्न है आप कितना टर्नओवर कर रही हैं और इंडस्ट्री में कितने टर्नओवर का स्कोप है। अगर आप हैप्पी हैं उतने से तो बड़ा ठीक बात है, जिंदगी में आपका संतोष ही आपकी जीत है। एवरीबडी इज अ विनर, आप सब विनर हो। अगर आपको ये लगता है कि मैंने महीने के लाख रुपए कमा लिए, मैं हैप्पी हूं, तो ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं मुझे तो 10 लाख कमाने हैं, वो भी पॉसिबिलिटी है। अगर आपको लगता है मुझे उससे ज्यादा कमाने, तो मैंने 2002 में जब काम शुरू किया तो सबसे पहला पता है मैंने प्रश्न अपने आप से क्या कहा था, कि शालिनी तूने अगर पैकेजिंग का काम करना है तो क्यों करना है? तो मैंने सोचा था मुझे 5 लाख रुपया महीना प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, जैसी जिंदगी में जी रही थी। तो मैंने सारा बिजनेस अपना वहां से ड्राइव किया, मुझे 5 लाख रुपीस पर मंथ कैसे मिलेगा, कौन कस्टमर देगा, क्या बनाऊं, क्या भाषा दूं, कहाँ बेचूं, कैसे बेचूं। उसकी वजह से आज मैं यहाँ हूं जहां हूं। ये बिजनेस कभी भी ऐसे नहीं बना कि मैं कुछ बनाऊं और बेच दूं, कुछ बनाऊं और बेच दूं। इट इज नेवर बीन लाइक दिस, इट इज ऑलवेज बीन, मेरा उद्देश्य क्या है बिजनेस करने का, मेरा गोल क्या है। मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ आपका गोल क्या है? सिर्फ पैसे कमाने हैं? पैसे और नाम दोनों कमाना है? पैसे नाम कमा के बहुत बड़ा वर्ल्ड ओवर बिजनेस करना है, फेमस होना है? व्हाट इज योर गोल? मुझे फेमस होना था और पैसे कमाने थे, तो मैंने उसको वैसे प्लान किया, राइट। तो आपको ये देखना होगा। नाउ वी हैव सम पीपल गिव आल्सो हैम्पर ऑन रेंट। रेंट पे हैम्पर नहीं मिलते हैं, कपड़े की ट्रे रेंट पे जाती है। वंदना सेज फाइनेंशियल फ्रीडम, ओके। रिंकी सेज हाउ टू स्टार्टअप। मैंने आपको यही बताया है रिंकी, आज की जो हम बात कर रहे हैं वो यहीं से है कि आप अपने घर से कहाँ से शुरू कर सकते हैं। अगर कोई आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। एनीबडी नाउ, ऑल ऑफ यू शेयर्ड योर नंबर टू नो अबाउट द मैप प्रोग्राम, एम आई राइट? आप सबने अपना नंबर जो शेयर किया, आपको मैसेज करे जो कि आप एक मैप प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते थे। इज इट सो? हाँ, बिंदु मैं सिखाती हूँ हाउ टू मेक हैम्पर्स, राइट, आई टीच दैट। आप में से जो भी इसके बारे में पूरी डिटेल चाहता है प्रॉपरली, मीन्स कि मैं कंप्लीट प्रोग्राम के बारे में जानना चाहती हूँ, तो आप अपना नंबर शेयर करें, मेरी टीम है, दे विल टेक द नंबर। यू कैन राइट द टाइम ऑल्सो, कि भाई हाँ कि मेरे को आप इस समय कॉल कर लें। आप साथ में ये भी लिख सकते हैं कि मुझे, मैं पूरी गिफ्ट पैकेजिंग का बिजनेस रन करना चाह रही हूँ, उसका इंफॉर्मेशन चाहिए, या
मैं सिर्फ हैम्पर्स का करना चाह रही हूँ, उसका इंफॉर्मेशन चाहिए, यू ऑल कैन गिव योर नंबर्स हियर। आप में से अगर कोई किसी स्टूडेंट से बात करना चाह रहा है, स्टूडेंट एक्सपीरियंस लेना चाह रहा है, यू कैन राइट डाउन दैट ऑल्सो। हम आपका नंबर अपने स्टूडेंट्स को दे देंगे, दे कैन स्पीक टू यू, है ना। तो बाय द टाइम आप लोग नंबर दे रहे हैं, मैं धारा के क्वेश्चन को आंसर कर रही हूँ। हाउ मच प्रॉफिट परसेंटेज ऑन अ पैकेज? तो इट प्राइसिंग डिपेंड्स अपॉन योर क्लाइंट, लेकिन अगर मैं ऑन दी होल बिजनेस का रूल बुक देखूं, ऑन दी होल, जिससे कि आपका बिजनेस करना सफल हो, अगर मैं देखूं, जब हम बात करते हैं सप्लाईज की, मींस B2B, कि मैंने कुछ बनाया, मैं बेच नहीं रही हूं, मैंने धारा को बेच दिया, धारा उसको बेचेगी आगे, तो मैं 20 से 30% अपने लिए रखूंगी। तो मैं 100 की चीज 120 से 130 में धारा को दूंगी। ये डिपेंड करेगा धारा मुझसे कितने पीस ले रही है, किस शहर में धारा है, क्योंकि धारा बेचेगी तो मुझे दोबारा रिपीट ऑर्डर मिलेगा, राइट? दैट इज वन। सेकेंड प्राइसिंग आई डू, सेकेंड प्राइसिंग वी डू, कि मैं धारा को डायरेक्टली सप्लाई नहीं कर रही हूं, लेकिन आई एम सेलिंग थ्रू अ चैनल जहां पे मैं कस्टमर को मीट नहीं कर रही हूँ। I'm doing online, maybe I'm just putting it on the Instagram, you just see and give. तो मैं 35 से 40% पे भी सेल कर लूंगी, क्योंकि इसमें मैं बुद्धि नहीं लगा रही हूँ, मैंने बनाया, मल्टीपल बनाया और डाल दिया, और मैं चाह रही हूँ बहुत सारा बिके, बहुत सारा बिके, बहुत सारा बिके, तो मैं ज्यादा रेवेन्यू। और ऐसी चीजें मोस्टली वो होती है जो आराम से बनती है, जिसमें मेहनत नहीं करनी है, जो इजीली बन जाती है, जिसको हम लेबर से बनवा सकते हैं, जिसमें खुद मेहनत नहीं करनी, शरीर नहीं लगाना पड़ेगा। आपने एक सैंपल बनाया, लोगों को दिया, तो अगर आप 35-40% भी उसमें कमा रहे हो, गुड इनफ। 100 पे 400 रुपया आगे आपको मिल रहा है, 1400 आपने कोट किया, आपको मिल रहा है, ठीक है। लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट प्रीमियम, व्हेन आई टॉक अबाउट जहां पे मैं अपना डिजाइन बना रही हूँ, मुझे काम करना पड़ा है, सो एटलीस्ट पहले हम लोग उसे 100% पे बेचते थे, तो अब भी 100% पे तो बिकता ही है, लेकिन 65-70% तो कहीं नहीं गया। अगर आप इससे कम में कर रहे हो, देन यू रियली नीड टू थिंक अगेन। एक और बात आप याद में रखें, जब आप अपनी प्राइसिंग करें, ये लिख लो, आप लोग पता है कैसे प्राइस करते हो बच्चे? आप सामान का खर्चा लगाते हो, आपने अगर किसी को लेबर दी तो आप उसका लगा लेते हो, ठीक है। और क्योंकि आप घर से काम कर रहे हो, तो देखो निशा के ऊपर पंखा चल रहा है, फैन चल रहा है, वो फैन के बिल नहीं लगा रही, पति दे रहा है बेचारा वो पैसे, या पिता दे रहा है वो पैसे, आप में से कोई भी वो खर्चा नहीं लगा रहे हो। उसका एक देखना, ड्रॉबैक देखना ना, आप अपने घर का खर्चा लगा रहे हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने एक मटेरियल के साथ में जो भी कॉस्टिंग लगी और उसको लगा के उसको दे दिया। अब मुझे वो पसंद आ गया, मुझे वो पसंद आया, और मैंने आपसे कहा कि चलो जी मुझे तो 500 पीस बना दो आप। 500 पीस के लिए अब आपका घर छोटा है, आपको कोई हॉल लेना है 1 हफ्ते के लिए, पर आप ले ही नहीं सकते, आपने तो जगह का खर्चा ही नहीं लगाया है। अब आपको लेबर चाहिए, आप लगा ही नहीं सकते हो, आपने तो लेबर का खर्चा ही नहीं लगाया। आपको ट्रक से सामान मंगाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी गाड़ी की डिक्की में नहीं आएगा, आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आपने वो खर्चा ही नहीं लगाया। ये ग्रोथ का रूट नहीं है, दिस इज नॉट अ ग्रोथ रूट। एक और बात याद रखना, ये जो हमारे मन में डर है, डर कि क्लाइंट भाग जाएगा, वो लेगा नहीं, तो भैया नौकरी थोड़ी करनी है, क्लाइंट की पैसा कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? हाँ जी, कि पैसा कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं माय डियर। हाथ घिसाई नहीं करनी, हाथ घिसाई नहीं करनी, नहीं करना, लेकिन करना है तो जो मेरी आशाएं हैं, जो मेरी एस्पिरेशंस हैं, उसको मैंने पूरा करना है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप ओवर प्राइस करें, लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूं कि बिजनेस करें तो बिजनेस के सिस्टम्स, बिजनेस की स्ट्रेटेजी, बिजनेस के स्किल को देखते हुए कोई भी बिजनेस करें, और वो अगर आपके गोल को, आपके उद्देश्य को पूरा करता है, तो ही वो बिजनेस है।
With this, thank you so much. Thank you so much. And you people have given your numbers. मेरी टीम आपको मैसेज करेगी. वो लोग जबरदस्ती आपको कॉल नहीं करेंगे, ठीक है? आप लोग खुद है, ये आपका बिजनेस. उनका काम नहीं है प्रोग्राम को सेल करना, आपका काम है. अगर आपको अपने बिजनेस के लिए प्रोग्राम चाहिए तो आप उसको लें, अदरवाइज डोंट. ओके, तो it is not there. If Santosh has come for eco-friendly sustainability, if Nandini from Mumbai is here to grow, and she's a super designer, आगे आने वाले time पे you will see these people. Neha has come from Jalandhar, if Shanti has come from Hyderabad, they have chosen to be in this space. Pradanya from Chennai, they have, Nazia is from Delhi, and brave girl she is, her husband is in UAE, we are all with her, sending lot of love over there. So I'm telling you, all of you, हाथ घिसाई करके काम ना करें. और any business is doable, earnable, profitable if it is done in a proper manner, if it is done in a proper style. जो उसका है, आलू की सब्जी आलू के डालने से बनेगी और आलू से अनुरूप मसाले डालने से बनेगी. आलू की सब्जी के अंदर मीठे चावल का डालने से मीठा आलू बनेगा, आलू की सब्जी ना बनेगी. इसी तरह से अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करना है तो उसी की तरह की चीजें आपको उसमें डालनी होगी, ठीक है जी? सो एनी आप लोगों का जो क्वेश्चन है योगिता, फॉर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स इनटू प्रोग्राम एंड ऑल, सो वी हैव मल्टीपल प्रोग्राम्स. हमारे पास सिल्वर मेंबरशिप है, डायमंड मेंबरशिप है, हमारा एक ओपन प्रोग्राम आ रहा है रिलेटेड टू हैम्पर्स ऑल्सो, इंडिविजुअल 1 डे सेशंस भी आते हैं. यू नीड टू चूज वेल. और जो मैप की टीम है वो किसी को भी किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करती है. वो आपकी लाइफ को जानेगी, वो आपसे ना कुछ क्वेश्चंस पूछेगी. आप कहेंगे क्यों पूछ रही, तेरा हस्बैंड क्या करता है, तेरी सासू जी हैप्पी है क्या, तेरे बच्चे कितने बड़े. आप कहोगे यार ये प्रोग्राम दे रही है मुझे कि सारा घर का ब्यौरा ले रही है. पर वो ऐसा करेंगी क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए किस ढंग का बिजनेस सूटेबल रहेगा, क्या ये प्रोग्राम आपके लिए फिटिंग रहेगा कि नहीं रहेगा. Only if this program fits you, then you come into the program, otherwise don't. For not everybody this is fitting. If somebody only wants to do chocolate packing, it is not fitting. Somebody says मैं तो वेला हूँ, टाइम है, उसको स्पेंड करने आ रहा हूँ, वो प्रोग्राम उसके लिए नहीं है. प्रोग्राम प्रोफेशनल के लिए है, प्रोग्राम उन लेडीज के लिए है जो अपने आप को ग्रो करना चाहती हैं, पैसे कमाना चाहती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, ठीक है जी? सो थैंक यू सो मच for being with me here. Thank you so much, and I hope that you people have shared your number. For all the people who will see this, maybe the video later on, if you want to share your contact detail, we are at map.india on Instagram, and we have a website also, www.map, that is mappmap.co.in. आप वहां पे भी मैसेज छोड़ सकते हैं, अदरवाइज द नंबर इज देयर. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. माय टीम विल बी मैसेजिंग यू, ठीक है? एनीबडी एल्स वांट्स टू गिव द नंबर?